A very good morning, students. We are doing chapter 3, Meeting Life Challenges, in which we had already studied about the concept of stress, the types of stress, sources of stress, and the effect of stress. And also, we had doing two major approaches or two major theory. First one is Lazarus cognitive appraisal theory, and the Hans-Selye theory, which is known as general adaptation syndrome. And our remaining topic is cognitive coping with stress and the stress managing techniques. Okay, so our next major topic is coping with stress. Before this topic, a small topic is lifestyle and stress. That means the how stress is affect our lifestyle, how our daily routine and overall the lifestyle is affected by the stress. Okay, so let's look at the topic lifestyle and health and stress. So stress can lead to unhealthy lifestyle or health damaging behavior. Lifestyle is the overall pattern of decision and behaviors that determine a person's health and quality of life. बेसिकली लाइफस्टाइल है क्या? लाइफस्टाइल इज़ अ बेसिकली अ पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर. ओके, जो कि बेसिकली एक पर्सन के हेल्थ को और उसके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, डिसाइड करता है. सो हेल्थ स्ट्रेस इज बेसिकली अ very damaging impact on our health. Stress individual may be more likely to expose themselves to pathogens which are agents causing physical illness, and people who are stressed have poor nutritional habits, sleep less, and are likely to engage in other health risking behavior like smoking and alcohol abuse. So such health impairing behavior develop gradually and are accompanied by pleasant experiences temporarily. So however, we tend to ignore their long term damaging effect and understanding the risk they pose to our life. दैट्स मीन जब इंडिविजुअल स्ट्रेस में रहता है बेसिकली, तो उसकी ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न्स, इवन द दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल इनटेक, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं. सो दिस टेम्परेरी बेसिकली ये जो एक्टिविटी है स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक, ये टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर देती हैं उस स्ट्रेस से, बट एट द एंड ये हमारी इलनेसेस को प्रमोट करती हैं, हमारी बॉडी को इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती हैं और हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बैडली इफ़ेक्ट करती हैं, निगेटिव इफ़ेक्ट करती हैं. सो हाउएवर वी टेंड टू इग्नोर देयर लॉन्ग टर्म डैमेजेस. इससे जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है उसे हम इग्नोर करते हैं. स्टडीज हैव रिवील्ड दैट हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर लाइक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज and family support etc. play an important role in good health. So adhering to a lifestyle that includes balanced low fat diet, regular exercise and continued activity along with positive thinking enhance health and longevity. The modern lifestyle of excess in eating, drinking and that so called fast paced good. So life has led to violation of basic principles of health. So in some of us as to what we eat, think or do with our life. दैट्स मीन जो स्ट्रेस होता है इससे बेसिकली हम किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट के थ्रू, रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंक है कि इंगेज रहना, वो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, इंटरेस्टेड एक्टिविटी में, जो भी आपको पसंद हो, जो आपकी चॉइस का चीज़ है उसमें इंगेज रहना. ब्रेन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए. फिजिकली आप एक्टिवेट रहो, फिजिकली एक्टिव रहो, किसी चीज़ में इंगेज रहो. दिस इज़ अ गुड साइन जिसके थ्रू हम अपने हेल्थ को इन्हांस कर सकते हैं, एट द सेम टाइम स्ट्रेस के चांसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली हमें अगर हेल्दी रहना है, स्ट्रेस से कोप अप करना है, तो सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना होगा, एक रेगुलर रूटीन, जिसमें कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना होगा. एट द सेम टाइम हमें गुड हैबिट, ईटिंग हैबिट, अ गुड पैटर्न ऑफ स्लीप,
minimum amount of intake of water and exercise, social interaction, communication, ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ करनी होगी, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट इंक्रीज़ करना होगा. सो दीज आर द टूल्स, दीज आर द एस्पेक्ट्स जिसके बेसिस पे अपने स्ट्रेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं, अपने हेल्थ को और अपनी लाइफ स्टाइल को, ओवरऑल लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, आवर लाइफ स्टाइल किस तरह से हमसे रिलेटेड है. नाउ आवर मेजर टॉपिक इज़ कोपिंग विथ स्ट्रेस. In recent years, the conviction has grown that it is how we cope with stress and not the stress one experience that influence our psychological well-being, social functioning and health. So basically, coping is a dynamic situation-specific reactions to stress. बेसिकली स्ट्रेस कोपिंग क्या है? कोपिंग दैट्स मीन अ सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शंस जो कि हम स्ट्रेस के लिए करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द स्ट्रेस. इट इज़ अ सेट ऑफ कंक्रीट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट दैट आर इंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस. दैट्स मीन कोपिंग इज, it is a set of concrete responses, a combination, a group of responses जो कि हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन और जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या इवेंट है उनको प्रॉब्लम से डील करने के लिए और उसके जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए वर्क करती है. ओके, द वे वी कोप विथ स्ट्रेस ऑफ देन डिपेंड्स ऑन रिजिड डीप सीटेड बिलीव्स. किस तरह से हम कोप के लिए रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारी रूट्स में, हमारी बिलीव सिस्टम में, हमारी वैल्यूज़ में, and based on our experience also. So when caught in a traffic jam, we feel angry because we believe that the traffic should move faster. ठीक है, ये क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम का एक क्या कह सकते हैं उसको, स्कीमा है जहाँ पे हम शुड को मस्ट करें कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमारा जो आइडियल पर्सपेक्टिव है, ठीक है. और बिकॉज वी बिलीव दैट कि द ट्रैफिक शुड move faster, that's why we feel stress when we are suffering a traffic jam. So to manage stress, we often need to reassess the way we think and learn coping strategies. स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा? हमें किस चीज़ की नीड है? रीजंस की. रीजंस द वे वी थिंक, किस तरह से हम सोचते हैं उसे हमें चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, एंड हमें लर्न करना होगा डिफरेंट काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज. सो पीपल हु कोप पुअरली विथ स्ट्रेस हैव एन इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड डाइमेंश्ड एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स. ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स दैट्स मीन द टी सेल. जो टी सेल थी उस बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बैडली इफेक्ट करता है स्ट्रेस. सो दैट्स मीन हमें उसे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा नीड है. For saving our life, for saving our physical and the psychological efficiency. So individuals show consistent individuals differences in the coping strategies they use to handle stressful situation. So these can include both overt and covert activities. The three coping strategies given by Andler and Parker are. ठीक है, बेसिकली इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि हमारे दो फेमस साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई है. एडलर एंड पार्कर ने 3 टाइप ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई है. इसके बाद फोकमैन में भी कुछ टेक्निक्स बताई है जिसके थ्रू, बेसिकली 2 टेक्निक बताई है जिसके थ्रू हम स्ट्रेस से कोप अप कर सकते हैं. बट हियर इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द स्ट्रेटजीज विच वी सेलेक्ट फॉर कोपिंग विथ स्ट्रेस दैट इज बेसिकली यूनिक. एंड एक इंडिविजुअल जो एक सिचुएशन में जो एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहा है, दैट्स नॉट मीन कि अदर इंडिविजुअल भी सेम करेगा. दैट्स मीन हियर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कोपिंग स्ट्रेटजी. सो द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, द इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम इज डिटरमाइंड विच स्ट्रेटजी, विच कोपिंग स्ट्रेटजी वी आर सेलेक्टिंग. So according to Adler and Parker, there are 3 basic type of strategies. First one is task oriented, second is emotional oriented, and third is avoidance oriented strategies. So let's look at the first strategies, which is task oriented strategies. So this involves
obtaining information about the stressful situation and about alternative courses of action and their probable outcome. It also involves deciding priorities and acting so as to deal directly with the stressful situation. For example, schedule my time better or think about how I have solved similar problems. ठीक है, सेविंग द टाइम बेसिकली. सो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी जो है बेसिकली वो टास्क पे इम्फेसिस करती है, टास्क को सेंटर करती है. ठीक है, टास्क दैट मीन द एनी सिचुएशन और एनी इवेंट विच प्रोड्यूस द स्ट्रेस इन आवर माइंड. तो हम बेसिकली उस सिचुएशन पे, उस इवेंट पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उस सिचुएशन को और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेस ना हो. ठीक है, सो दिस इज नोन एज टास्क ओरिएंटेड स्टडी, जहाँ पे हम अपने टास्क में चेंजेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द पर्पज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस. नाउ आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज. दैट्स मीन कंट्रोलिंग द इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस बेसिकली. This can involve effort to maintain hope and to control one's emotion. It can also involve venting feelings of anger and frustration or deciding that nothing can be done to change things. For example, tell myself that it is not really happening to me or worry about what I am going to do. ठीक है, बेसिकली इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज में हम अपने इमोशनल इनबैलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड वी मैनेज अवर निगेटिव इमोशंस इफेक्टिवली. वी मैनेज अवर निगेटिव इमोशंस इफेक्टिवली एंड द इन पॉजिटिव मैनर. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एंगर की फीलिंग को, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को कंट्रोल करते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं इन वे. फॉर एग्जाम्पल, टेल माई सेल्फ दैट इट इज़ नॉट रियली हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ नहीं हो सकता. और वरी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर कुछ करने जा रहे हैं तो उसके बारे में एक बार सोच के करेंगे. तो दिस इज़ द इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रेस की फीलिंग्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं. स्ट्रेस हम जो फील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसे हम कुछ हद तक समहाउ हम डिक्रीज़ कर सकते हैं. नाउ लास्ट स्ट्रेटजीज इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. एज द नेम सजेस्ट, अवॉइडेंस दैट्स मीन यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं समथिंग. सो दिस इन्वॉल्व्स डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. इट ऑल्सो इन्वॉल्व कॉन्शियस suppression of stressful thought and their replacement by self protective thoughts. ठीक है, क्या हो रहा है इसमें बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है. सो इफ़ वी थिंक कि नहीं मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ थॉट इज़ बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज. हमारा स्ट्रेस लेवल ना अराइज हो, दैट्स वाई हम अपने आप को इंश्योर कर रहे हैं. ये जो हमारा डिनाई होता है, ये दिस इज़ बेसिकली इन अ कॉन्शियस लेवल, इन अ अवेयरनेस लेवल. आपके बिल्कुल वेरी मच अवेयरनेस लेवल पे होता है, आपके कॉन्शियस लेवल पे होता है, जहाँ पे हम सप्रेस कर देते हैं अपने थॉट्स को. निगेटिव थॉट्स अगर हमारे माइंड में आते हैं तो हम सडनली वहाँ पे उसको सप्रेस कर देते हैं, उससे टोटली डिनाई कर जाते हैं कि नो दिस इज़ नॉट हैपनिंग विथ मी. Okay, so this is the replacement of negative thought or the stressful thought by self protective thoughts. ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्टिव थाट्स के थ्रू हम इसे डिनाई करते हैं और सप्रेस कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं बेसिकली. सो एग्जाम्पल ऑफ दीज आर वॉचिंग टीवी, फोन अप अ फ्रेंड और ट्राई टू बी विथ अदर पीपल. ठीक है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, टीवी में दिखा रहा है, दैट्स नॉट मीन कि वो हमारे साथ होगा, या हम उस पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं उस थॉट को अपने माइंड से. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्कर्स और एंडलर्स स्ट्रेटजीज. नाउ लुक द second group of psychologists who give the second classification of strategies, coping strategies. So this is the given by Lazarus and Folkman. Lazarus and Folkman has conceptualized coping as a dynamic process rather than an individual traits. So coping refers to consistently changing cognitive and behavioral effort to master
reduce or tolerate the internal or the external demands that are created by the stressful transactions. ठीक है, क्या बिलीव करते हैं अकॉर्डिंग टू लेजारस एंड फोकमैन, वो क्या बिलीव करते हैं, उनका कोपिंग का जो डेफिनेशन है वो हमारे पार्कर की डेफिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट है. अकॉर्डिंग टू पार्कर स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या थी, वो उसका रिएक्शन था. बट यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो कोपिंग है, कोपिंग वो बेसिकली एक कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस है. ठीक, इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने कॉग्निटिव और बिहेवियरल जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस करते हैं, एफर्ट लगाते हैं फॉर रिड्यूस दी स्ट्रेस लेवल और दी टॉलरेट दिस स्ट्रेस और दी मास्टर विद दिस स्ट्रेस the internal or the external demand that are created by the stressful transactions. ठीक है, किसी भी ऐसी डिमांड, वो इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है, उस डिमांड को हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेसफुल ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए या टॉलरेट करने के लिए या मास्टर करने के लिए हम बिहेवियर को और अपने कॉग्निटिव थॉट्स को चेंज करते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, फॉर द डीलिंग विद ट्रांजेक्शन ऑफ stressful situation. So coping serves to allow the individuals to manage or alter a problem and regulate the emotional responses. Coping क्या करती है, coping serve to allow the individual to manage or alter a problem and regulate the emotional responses to that problem. हमें इतना अवेयर करती है, हमें इतना केपेबल करती है बेसिकली कि हम उस कोपिंग में हम क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसे मैनेज करते हैं, उसे अल्टर करते हैं, प्रॉब्लम को का जो रेगुलेशन होता है उसके लिए अल्टर करते हैं और अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो कि प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स है उसे हम बेसिकली कंट्रोल करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देम कोपिंग रिस्पॉन्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज. जिस तरह से हम कोपिंग रिस्पॉन्स करते हैं बेसिकली वो 2 टाइप के हैं, एक प्रॉब्लम फोकस और दूसरा है इमोशनल फोकस. या तो हम प्रॉब्लम फोकस हैं, प्रॉब्लम फोकस इज बेसिकली सिमिलर टू दी टास्क ओरिएंटेड रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें लारेस की थ्योरी में तो हमारा जो टास्क ओरिएंटेड था विच इज़ हियर इज़ अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड और प्रॉब्लम फोकस. ठीक है, वहाँ पे जो टास्क ओरिएंटेड था. और द सेकेंड वन इज इमोशन फोकस. इमोशन फोकस दैट्स मीन द इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज एट द सेम. ठीक है, okay, so here the divided into 2 type of responses, problem focus and the emotion focus. So problem focus strategies attack the problems itself and with behaviors designed to gain information, to alter the event and to alter belief and commitments. They increase the person's awareness level of knowledge. तो क्या करते हैं बेसिकली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ, हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और उसे अल्टर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब रादर देन द अल्टरिंग अवर बिहेवियर और द एवर एक्सपीरियंसेस, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और उसे अल्टर करने के लिए उसको चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ विथ बिहेवियर्स डिजाइन टू गेन इंफॉर्मेशन, to alter the event and to alter belief and commitment. They increase to person's awareness level of knowledge and range of behavioral and cognitive coping options. यहाँ पे बेसिकली हम अपने कमिटमेंट लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, अपने जो नॉलेज है हमारी उस प्रॉब्लम के बारे में हम उसे इंक्रीज़ करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को अल्टर करते हैं और अपने कमिटमेंट को अल्टर करते हैं. इसके बेसिस पे हम उस रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बेसिकली हम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. दैट्स मीन हम प्रॉब्लम को डिटेल स्टडी करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपने कॉग्निटिव लेवल पे और उसके बाद उसे हम किस पॉसिबल टेक्निक से उसे हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो सोचते हैं और उसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करते हैं. They can act to reduce the threat value of the event. For example, I made a plan of action and followed it. If there is a problematic situation, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम फोकस करेंगे, बी प्रिपेयर, मतलब हम वेल प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है, आई मेड अ प्लान ऑफ एक्शन एंड फॉलोड इट. अगर हमने बहुत अच्छा एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया, मास्टर प्लान बनाया एंड जब हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉर्ट आउट ईजिली कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड हमें स्ट्रेस नहीं हो रहा है. कहते हैं ना एग्जाम में आप कब स्ट्रेस फील करोगे, व्हेन यू आर नॉट सफिशिएंट स्टडी. आप जब सफिशिएंट स्टडी नहीं किए हो, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस
और कॉन्फिडेंस किसकी बेसिस पे आएगा? बेसिकली आपकी स्टडी के बेसिस पे. इफ़ यू फील यू आर स्टडी सफिशिएंट, यू आर स्टडी सफिशिएंट और इनफ, देन यू फील कॉन्फिडेंट, एंड आपका जो उससे रिलेटेड स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्लान, यू आर प्रिपेयर. अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, यू कैन फील स्ट्रेस. Okay, now second strategies is emotion focused. Emotion focused strategies called for psychological changes designed primarily to limit the degree of emotional disruptions caused by an event with minimum effort to alter the event itself. For example, I did some things to let it out of my system. While both प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशनल फोकस कोपिंग आर नेसेसरी व्हेन फेसिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ठीक है, दोनों ही अपने एक एट द सेम टाइम दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द इमोशनल फोकस. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली लिमिट्स द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्टर्बन कॉज बाय इवेंट. उस पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर इवेंट से हमें जो स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस को फील करने का हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं, उसकी डिग्री को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन वी आर नॉट फीलिंग, व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट मीन हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा. हम उसके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं, ज़्यादा फील ही नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनली उससे अटैच्ड ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिन्हें एग्जाम्स में मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, दे डो नॉट थिंक अबाउट द मार्क्स सो मच. तो दैट मीन वो इमोशनली क्या कर रहे हैं? इमोशनली लिमिट कर दे रहे हैं. वो उसको अपने अवेयरनेस लेवल पे, अपने थिंकिंग लेवल पे, अपने फीलिंग लेवल पे लाने ही नहीं दे रहे हैं. तो उनके स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है. इफ़ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम बेटर, सो वो क्या कर रहे हैं? अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले रहे हैं, उन्हें अल्टर कर दे रहे हैं, उन्हें लिमिट कर दे रहे हैं. सो वाइल बोथ प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशनल फोकस कोपिंग आर नेसेसरली when facing stressful situations. So research suggests that people generally tend to use the former more often than the later. ठीक है, मतलब बेसिकली ये देखा गया है, स्टडीज़ के थ्रू ये प्रूफ किया गया है कि बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रॉब्लम फोकस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड एट द सेम टाइम दोनों ही स्ट्रेटजीज़ यूज़फुल है स्ट्रेस से कोप अप के लिए. So these are all about the coping strategy and how the person is cope with stress. The different kind of strategies, the different style of coping which we are using for dealing with stress or dealing with stressful situation. So our next topic is basically stress management technique. These are the coping strategies. Now the management techniques. Coping strategies basically use when we are perceive the stress. हमारा जो अप्रेजल था, द कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, जहाँ पे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे अप्रेजल हमारा जो रहा था, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल, उस लेवल पे हम कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं. ठीक है, जब तक हम स्ट्रेस का परसेप्शन कर रहे हैं, जब हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, जब हम विद इन ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पे स्ट्रेस हो चुका है, आई कैन फील स्ट्रेस, जब तक हम फील नहीं कर रहे बिफोर दिस स्ट्रेस, वो कोपिंग स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं. और जब हम एक्चुअली स्ट्रेस की कंडीशन में हैं तो उस टाइम में हम उससे किस तरह से डील कर सकते हैं? दिस इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. किस तरह से हम उससे मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, कोपिंग द प्राइमर वन एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द सेकेंड वन. व्हेन वी आर फीलिंग स्ट्रेस, देन वी आर यूजिंग सम टेक्निक टू मैनेज, टू डील विद स्ट्रेस. द स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर. As you know, the stress is basically a silent killer. It is a very dangerous for our health, our mental health or our physical health also. So it is estimated to play a significant role in physical illnesses and diseases. Almost the 50 to 70% diseases are due to stress, due to long-term stress, or you can say prolonged stress. Hypertension, heart disease, ulcer, diabetes, and even cancer are linked to stress. The studies shows that this type of disorders, the hypertension, the cancer, the heart diseases, basically direct related to the stress. Due to lifestyle changes, stress is on the increase. Therefore, schools, other institutions, offices, and communities are concerned about knowing techniques to manage stress, and some of
these techniques we are discussing in this section. So basically स्कूल लेवल पे, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेस से डील करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेक्निक्स है उसके लिए अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज स्ट्रेस का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, आज से काफ़ी सालों पहले अगर देखा जाए, हमसे प्रीवियस जनरेशन जो है उसको शायद इतना स्ट्रेस नहीं होता था, बट आज के स्टूडेंट्स को भी इतना स्ट्रेस है जितना शायद एक अडल्ट भी नहीं फील करता था आज से कुछ साल, 2 जनरेशन अगर पीछे आप चले जाओ तो. सो दैट्स मीन द लेवल ऑफ स्ट्रेस आर वेरी मच इंक्रीज इन नाउ डेज ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंज, बिकॉज आवर लाइफ इज़ सो मच टेक्निकल, सो मच मैकेनिकल. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल होने जा रहे हैं, होते जा रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है. ये सारी जो चीज़ें ये हमारे स्ट्रेस के लेवल को इंक्रीज़ कर रही है. So due to this our stress is so in this section you will understand some techniques, for example relaxation technique, meditation procedure, biofeedback, creative visualization, cognitive behavioral techniques, and the exercises in which you cover the yoga part also, the different kind of yogas. Okay, so this is all about the management technique. We will discuss this type of techniques in detail in a next video. And in this chapter the last topic of your this chapter is promoting positive health and well-being. ठीक है, ये आपके थर्ड चैप्टर जो है आपका, इसका लास्ट टॉपिक है promoting positive health and well-being, which is very lengthy topic, and after that your chapter third is also completed. So this is all about today. Now time for homework. So in homework you have to complete the activity 3.4 in page number 62. Which of the following coping behavior are problem focused and why? You have to find out the there are some statement, there are some questions. On the basis of these you have to find out the strategy, which strategy is using, which is the problem focused strategy, and why. So first point is discussing your problem with a friend, feeling sorry for failing in an examination, finding fault with classmates for poor marks in test. Next is hiding examination result from parents. Next is blaming friend for bad habits, reading essential books for the annual examination, making effort to improve one's performance after a setback. Next is missing school when assignment not completed. Discuss the answer with your classmate and teachers. So you have to find out not only a problem focused strategy and why, you have to find out all strategies. पर्टिकुलर हर स्टेटमेंट में कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ हुई है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट इन योर होमवर्क. ओके, सो देयर आर 2 to 4 to 6 to 8. ओके, 8 पॉइंट है, आपको 8 स्ट्रेटजीज, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ हुई है आपको वो बताना है, एंड बेसिकली राइट डाउन करना है और उसे मुझे शो करना है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. लेट्स स्टार्ट द रिविजन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोपिंग. We are doing coping with stress, in which we understand the concept of coping, and we had also understand the different type of strategies which we using in coping with stress. So first of all given by Parker, which are task oriented, emotion oriented, and the avoidance oriented strategies, and given by Lazarus and Folkman, the problem focused and the emotion focused strategies. That means the problem focused strategies given by Lazarus is as the same like a task oriented strategies given by Parker, and the emotion focused strategies as the emotion oriented strategies given by Parker. Okay, so this is all about today's video. Okay class, let's meet to another video. Thank you class. And students, if you feel any doubt, any problem related to my videos related to any topic, you can ask me anytime at any mode. You want to WhatsApp me, or you want to call me, or you want to share with the
WhatsApp message. Okay, so yeah, you have to write down your homework first, and after that you can consult me for your problems. Okay class, thank you.